सभी को राम राम। जय श्री महाकाल। तो शुरू करते हैं आज की इस ब्यूटीफुल इवनिंग को विद द ब्यूटीफुल सोल मीनल शाह। एंड बिगिन करने से पहले यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ बिगिन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। So this is Renu Mangtani, certified digital banker by profession, into the banking industry since 6 to 7 years, and then now turned to an internationally renowned author. Various cover girl pages I have covered from the film industries, like film industry magazines, and with the various celebs I have met, with the Udit Narayan and much more. And Youth Icon Awardee by Governor of Maharashtra, YouTuber, influencer, Dr. APJ Abdul Kalam Awards, national and internationally awarded. So let's not take much time and let's have some introduction of the beautiful guest of the evening. She is none other than Meenal Shah. Over to you, Meenal ma'am. Namaste, ma'am. Namaste to everybody, whoever is viewing this right now. My name is Meenal Shah, and I'm very happy to be associated with ma'am and sir over here. अंकाक्षर मेडिकल्स जो इनका नेम है. इट्स माय प्रिविलेज कि आज मैं यहाँ पे हूँ, मैम के साथ स्क्रीन शेयर करके बैठी हूँ. Talking about Meenal ma'am, she is into the occult field, she is into the master professional numerologist, then tarot card reader, Vastu consultant, Reiki healer, NLP practitioner, motivational speaker. So, ma'am, we would like to hear something on women empowerment and economic development from you. Like, what's your say on this topic? मैम, टू बिगिन विथ, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है. इट इज बिकॉज वी कैन राइट pages and pages about women empowerment and economic development. It can be in any form. Today, as we all believe कि बच्चे का जो फर्स्ट फाउंडेशन होता है वो घर से शुरू होता है, एक मदर के पास से शुरू होता है. फर्स्ट स्कूल हो जाए या इवन बीइंग द फर्स्ट वुमेन इन अ मैन्स लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम द मदर. तो वुमेन का रोल is a lot in the society, in forming the whole society, in forming the household, in molding a person. अगर कोई इंसान बुरा भी है तो भी उसमें माँ का ही हाथ होता है, एक औरत का ही हाथ होता है. एंड अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का भी बन जाता है तो भी उसके पीछे उसकी मदर का ही रोल होता है, एक वुमेन का रोल होता है. जैसे आज हम लोग देखते हैं कि मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं हम सभी के लिए, कहीं ना कहीं इनके मदर की परवरिश की वजह से. सो आई बिलीव वुमेन एम्पावरमेंट, जब एक वुमेन को वो पूरी आजादी दी जाती है कि चलो आप जाओ फील्ड में, आपको जो करना है करो, इन द पॉजिटिव वे, इन अ सपोर्टिव वे, तो वी कैन मेक वंडर्स, वी कैन क्रिएट वंडर्स. एंड जो मैं समझती हूँ एक ही चीज है कि जो नारी शक्ति को एक वरदान दिया गया है भगवान के तौर पे कि हम एक नए लाइफ को लेके आ सकते हैं हमारे जान के ऊपर खेल के भी. This is the thing which only a woman can do. So empowering a woman in economic field, यानी financially उसको independent बनाना, उसको आगे लेके आना, उसको scope देना is a very big thing. And because of this, we can see development of India in multiple ways, development of the world. लेकिन सबसे पहले development of self begins from there. This is what I believe in women empowerment. Thank you so much for wonderfully explaining it, ma'am. And going through your profile, you are a BE, a Bachelor's of Engineering, you have completed in civil. And then suddenly I can see that you have achieved a lot in the occult field. So how this journey transformation from engineering to an occult field, how does it happen? Just we would love to know that, ma'am. Yes, ma'am. Actually, I studied engineering, and the moment I completed my degree, तो शादी हो गई, and I went to a different state. I have studied from Karnataka, and I got married to Kerala. तो नई नई शादी हुई थी, तो language barrier plus family responsibilities, everything happened. So I never went on to the job. And later मैंने realize किया कि I don't have that inclination to work as a civil engineer, but something else. तो आई वर्क फॉर फ्यू इयर्स अंडर एन आर्किटेक्ट, लेकिन मुझ में वो पैशन नहीं आ रहा था, वो नहीं दिख रहा था. जस्ट फॉर वर्किंग पर्पस में काम कर रही थी वहां पे. बट वन डे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ काउंसलर. तो तब मुझे ये रोल अच्छा लगने लगा कि आई एम एबल टू गाइड पीपल, आई एम एबल टू शो देम व्हाट दे आर मेंट टू बी एंड व्हाट दे आर
they can achieve. So I took this field forward of counseling, and I worked in different fields, being the center manager, सेंटर कोऑर्डिनेटर, सेंटर हेड, प्रिंसिपल के पोस्ट पे, बहुत सारे पोस्ट पे काम किया मैंने. वंस कोविड हिट, एज एवरीबडी वाज एट होम, मैं भी घर पे थी क्योंकि स्कूल वगैरह चालू नहीं थे, इंस्टीट्यूशन सारे बंद थे. एंड आई केम अक्रॉस फ्यू ग्रुप्स, फ्यू persons who were teaching numerology and occult science. तो न्यूमरोलॉजी तो कॉलेज के टाइम से मैं करती थी, बट वेरी बेसिक, नॉट ऑन अ प्रोफेशनल लेवल. Once I came to know कि भाई ये इतना deep है, we can go so much into it and we can take it as a profession. I started investing my time, energy and everything into it. And I realized that this was what I'm meant to be. So after that, I've never gone back to any other field of working. I've stuck myself to occult industry, and सबसे बड़ी खुशी मुझे इसी में मिलती है. And that is how my journey began. I went on learning, I went on investing myself into various courses of different natures, like वास्तु हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, whatever I've studied till date, NLP हो गया, because I realized being a counselor gives me much more happiness than anything else. That was the purpose of my soul. कहीं ना कहीं ये realization hit हुआ, तब से I'm in occult. That's quite impressive, ma'am. So you have achieved a lot in the occult field, and while reading to your article, we can see that you have explained about the story of three women in the positive, negative, and the right way of empowerment. So can you brief about its moral to our audience? Yes, when you empower a woman in the positive way, as per the story, I'll just give you a very small summary because I want people to read and understand. So मैं बहुत टचिंग पॉइंट्स पे बात करूंगी मैं. आजकल ना बहुत सारे मेल्स होते हैं जो अपने आप को थोड़ा सा डोमिनेंट पोजीशंस पे रखते हैं, एंड दे डोंट वांट द फीमेल टू बी इंडिपेंडेंट. सो ऐसे बहुत बार टाइम्स आते हैं कि इफ समथिंग हैपेंस टू द मेल, इन केस नाउडेज वी आर सीइंग द डेथ रेट ऑफ पीपल हैज कम डाउन, gone up in the sense कि एज बहुत छोटे छोटे एजेस में डेथ हो रही है पीपल की, एंड सडनली द वुमन इज लेफ्ट विथ नथिंग टू हर नॉलेज. यानी ना ही हस्बैंड्स के पासवर्ड्स पते होते हैं, ना ही इन्वेस्टमेंट, ना ही मनी का कुछ पता होता है. सो द वुमन इज टोटली एट अ लॉस. जो जमा पूंजी है वो भी बहुत बार चली जाती है. सो what my method of guiding people through that first pointer of my story, positive ways, आप अपनी वाइफ को या स्पाउस को इक्विवेलेंट समझो. दे आर योर बेटर हाफ, इसलिए तो बेटर हाफ वर्ड यूज किया गया है. कल उठ के कुछ भी हो जाए, शी शुड बी एबल टू मैनेज हर लाइफ ऑन हर ओन, आप हो या ना हो, बिकॉज लाइफ इज वेरी अनसर्टन. नाउ इन द नेगेटिव वे, बहुत पहले हम लोगों ने देखा है कमिंग टू द फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ पे निरुपमा रॉय एंड वी हैड द सासू माँ काइंड ऑफ रोल, जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट सासू माँ रहती थी, एंड द नेगेटिव इमेज वाज पोर्ट्रेड. देयर आर women who are home breakers as well. Like वो jealousy factor इतनी होती है इन लोगों में कि even if you give them the power, they misuse the power. I have few examples, मैं openly नाम नहीं लूंगी, लेकिन there are women of high society, banking sector से वगैरह, जो misuse करते हैं, and they portray women in a negative light. And there are cases, since I work as a counselor, there are women who misuse the freedom or the privileges given to them just because दे नो कि वो लोग नारी है. जैसे फॉल्स केसेस डालना हस्बैंड के ऊपर, उनको लॉकअप में डोमेस्टिक वायलेंस केस के अंदर झूठा आरोप लगा के कोर्ट केस करवा लेना, डाइवोर्स के ऊपर, हिटिंग ऑन देयर मैनहुड, ये सारी चीजें चलती रहती है. सो दिस इज इन द नेगेटिव फॉर्म जो मैं पोर्ट्रे करना चाहती हूँ. एंड इन द राइट वे, द लास्ट वन जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, गाइडिंग अ वुमन इन द राइट. ऐसा नहीं कि सजी सजाई थाली अब दे दो वाइफ को कि भाई ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा अकाउंट डिटेल्स है, ये मेरी जीवन बीमा है, ऑल दैट. नो, मेक हर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि कल उठ के अगर आप ना भी हो तो शी इज अवेयर. और यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट जो मैं मानती हूँ एक लेडी को जो मिलता है वो है उसके इन लॉज की तरफ से. बट वो कब मिलता है? व्हेन द गर्ल ऑल्सो एक्सेप्ट्स हर इन लॉज एज मच एज शी एक्सेप्ट्स हर ओन पेरेंट्स. आजकल जो ये लड़कियां करती है ना कि एक एक चीज में मम्मा को फोन करके बोलना मेरी सास ने ऐसे किया, मेरे ससुर जी ने ऐसे किया, मेरे देवर जी ने ऐसे किया, दैट इज वेरी रॉन्ग. तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन थ्रू माय लास्ट टॉपिक कि इन द राइट वे आप वुमेन को एम्पावर करो. इसमें माँ का बहुत बड़ा रोल होता है. जब एक बेटी शादी करके जाती है, जितना इंटरफेरेंस एक माँ कर सकती है बेटी की लाइफ में, उसका घर वहीं पे टूटना स्टार्ट हो जाएगा. पहले के जमाने में विदाई होती थी, साल में एक बार ही बेटी घर आती थी, तब वो पूरे एक महीना बैठ के बिता के बातें भी करती थी, सीख के भी जाती थी, कुछ सिखा के भी जाती थी. नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड द ease of connecting to the other people through WhatsApp or through any media has become so rampant कि घर टूटने लगे हैं, रिश्ते डिसॉल्व होने लगे हैं. सो दिस वाज माय
वे ऑफ टेलिंग इट थ्रू दोज 3 टॉपिक्स, 3 हेडिंग्स, पॉजिटिव है, नेगेटिव है एंड द राइट। आप जितना अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हो एक लेडी को, एक औरत जो होती है वो घर बना भी सकती है, वो घर तोड़ भी सकती है, आदि शक्ति है। Yes, you explained it very wonderfully, ma'am. And इस बुक में लाइक 51 को ऑथर्स ने, सभी ने कुछ ना कुछ एक बेस्ट लेसन दिया ही है, जैसे अभी मैम ने बताया पॉजिटिव, नेगेटिव एंड राइट वे ऑफ एम्पावरमेंट में। तो ये बुक वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, विच इज ऑन Amazon, Flipkart, like you can purchase it. And I would like to inform you that 16% का ऑफर चल रहा है अभी Amazon पे। तो मैम रीडर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी आप इस बुक के रिलेटेड? इट्स अ मस्ट हैव बुक मैम, क्योंकि नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स बट फॉर मेल्स एज वेल, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को हाईलाइट किया है, नेगेटिव फॉर्म का भी, पॉजिटिव फॉर्म का भी। एंड जो बहुत बार क्या हो रहा है ना मैम, फीमेल्स आर एबल टू एक्सप्रेस, वी हैव लॉज फॉर द फीमेल, वी हैव सो मेनी प्रोविजंस फॉर द फीमेल, लेकिन यही जगह पे मेल्स को थोड़ा सा कम प्रिविलेज दिया गया। तो बाय दिस बुक वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे इवन दोज पॉइंटर्स की मेल के साथ भी हम लोग खड़े हैं, जितना प्रिविलेज फीमेल्स को मिल रहा है मेल्स को भी हम लोग दे रहे हैं। प्लस ऑफर तो चलो ठीक है, दैट्स वन गुड पॉइंट व्हाट वी आर गिविंग टू द पीपल, बट दिस बुक इज एन आई ओपनर टू ऑल द लेडीज, क्योंकि आप सारी स्टोरीज जब पढ़ोगे 51 लेडीज का व्यू पॉइंट है इसमें। जैसे 5 हमारी 5 उंगलियां एक जैसे नहीं होती, वैसे ही हर एक का थॉट प्रोसेस अलग होता है यहाँ पे। तो अ पर्सन व्हेन ही रीड्स ऑल द experiences of 51 different people, वो खुद समझ जाएंगे कि अगर वो लोग गलती करिए तो कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे उनको सुधरना चाहिए, कहाँ पे और इम्प्रूव कर सकते हैं इफ दे आर ऑलरेडी इन द टॉप पोजीशन, और कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं वो। सो इट इज बेसिकली अ समरी और एक amalgamation of different thought process under one title, women empowerment and economic development. तो though I had copies with me, author copies मेरे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, I told my friends I'll give it to you, but they outrightly refused. नहीं, we will purchase, वो तुम्हारी copies है, you retain it, we are going to purchase, and I'm happy they have purchased it from Amazon just to show their loyalty and their support towards all of the 51 authors, not just me, but those 51 ladies who have taken their pain and written into it. मैम आई वॉज नेवर एन ऑथर, मुझे लिखना कभी नहीं आता था, मुझे पता नहीं उस दिन से क्या इंस्पिरेशन मिली है। I have written non-stop, or I'm very happy that I am able to express myself, my thoughts to the world. So I want everybody, जो भी ये सुन रहा है, please go and purchase it, read it, and definitely share your reviews. आपको खुद आपके लाइफ में चेंज आना दिखेगा, स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो This मच is मैम, my answer. आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी रीडर्स के लिए। एंड यही बात मैं बताना चाहूंगी कि 51 जो को ऑथर्स हैं इसमें इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑथर्स नहीं थे, उन्होंने अपनी जर्नी ही मान लीजिए यहीं से शुरू की है। क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि उसके अंदर ऑथर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या टैलेंट है। बट इस किताब से बहुत जने ऑथर बने हैं, बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिली है। अगर मैं मीनल मैम आपके साथ पर्सनल बात शेयर करूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर भी एक ऑथर है। सो कोविड ने भी बहुत जनों को बहुत कुछ बनाया है। जैसे अभी आपने अपनी जर्नी के बारे में शेयर किया था कि कोविड में आपने कैसे अपना ऑकल्ट को और एक्सप्लोर किया, तो वैसे मैंने भी 2020 में लिखना स्टार्ट किया था। लाइक आई वॉज इन टू दी बैंकिंग, तो हम लोग एसेंशियल सर्विसेज में आते थे, जैसे हॉस्पिटल्स वर्किंग थे वैसे बैंकर्स भी वर्किंग थे। तो ट्रैवल करते टाइम, वो बस में ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम वो टाइम ही नहीं कटता था, तो उसे कैसे काटना था, तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। 2020 में मैंने अपनी राइटिंग की जर्नी स्टार्ट की एंड टुडे ऑथर ऑफ मोर देन 4 to 5 बुक्स एंड कंपाइलर मोर देन 30 to 35 बुक्स। सो ये किसी को पता नहीं है कि किसी के अंदर क्या है, क्या क्या है? टैलेंट है। तो अंकाक्षर Right. Miracles, all these projects are in association with Ankaksha Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research, जहाँ पे हम न्यू कमर्स को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप आइए, ऑथर बनिए, हमारे साथ जुड़िए। और ankaksharmiracles@gmail.com ये ईमेल आईडी है। और आपको बताना चाहूंगी कि ये जर्नी मीनल मैम की यहाँ नहीं रुकेगी और हमारी जर्नी भी अभी बहुत आगे तक चलेगी। तो हमारा अगला प्रोजेक्ट है माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स, जिसमें 108 को ऑथर्स है, विच इज अ डिवाइन नंबर। इट्स रजिस्ट्रेशंस आर स्टिल ओपन। आइए हम मीनल मैम से जानते हैं इस टॉपिक के बारे में उनका क्या कहना है।
मैम आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, क्योंकि एक्चुअली वी कैन राइट, एक पूरी किताब लिख सकते हैं। यहाँ पे तो हम लोग 108 को ऑथर्स बनेंगे, बट अगर मैं एक फीमेल को या एक मेल को, मैंने बहुत सारे इसमें मेल फ्रेंड्स को इस बार मैंने रिकमेंड किया कि आप लिखो। हर बार एक फीमेल अपना व्यू पॉइंट देती है कि वेदर इट्स अ ब्लिस और अ कर्स, बट ये बार मैं अपने मेल फ्रेंड्स का जो सर्कल है उनको मैं पुश कर रही हूँ इस बुक की तरफ कि भाई आप लिखो, वी वांट टू नो योर व्यूज ऑन इट। तो आई एम वेरी श्योर इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट, बहुत बड़ा हंगामा करने वाले हैं हम लोग ये बुक से, पॉजिटिव हंगामा, कि वी आर कमिंग अप विद सच ब्यूटीफुल टॉपिक्स। क्योंकि ये टॉपिक्स मैंने कहीं देखे नहीं है, कहीं सुने भी नहीं है। बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स इट इज देयर कि भाई लेडी को आगे बढ़ाओ, उनको प्रमोट करो, यू नो, ऑल दिस काइंड ऑफ बुक्स। बट राइटिंग ऑन दीज टॉपिक्स लाइक माई मैरिज स्पेशली, बहुत लोग ना काउंसलर के पास बात करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं कि भाई मेरे पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है। बट नाउ वी आर गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म। आप आओ, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स एक बुक में पेन डाउन करो, वी विल टेक इट टू द वर्ल्ड। एंड मैं ये मानती हूँ मैम कि जैसे सर ने भी एक बार मुझे गाइड किया था, अभिषेक सर ने, हम तो चले जाएंगे, शरीर तो नश्वर है, कोई ना कोई दिन तो आपको ये शरीर छोड़ के जाना है, बट जो हमारे थॉट्स है, जो हमारी बिलीफ है, वो सारे किताब के फॉर्म में यहीं पे रहने वाले। तो आई एम श्योर कि आगे जाके जब कोई भी हमारी बुक्स को पढ़ेंगे, दे विल रियलाइज के व्हाट वी हैव गॉन थ्रू, वेदर इट वाज अ ब्लिस, वेदर इट वाज अ कर्स, it's a wonderful topic and anybody everybody can write loads and loads of this। and एक बार कलम जो उठेगी मैम किसी के भी हाथ में ये लिखने के लिए, आई एम श्योर इट विल बी नॉन स्टॉप, वो लिखते जाएंगे एंड देन दे विल नॉट रियलाइज कि मैंने इतना कुछ लिख दिया है इस टॉपिक के ऊपर। इट्स अ ईच एंड वंडरफुल एवरी टॉपिक। स्टोरी इज अनहर्ड, तो यहाँ पे हम मौका दे रहे हैं कि आप आइए, अपनी स्टोरी को, आपकी स्टोरी को, आपके वर्ड्स को हम आवाज दे रहे हैं। ऑल यस आर लिसनिंग टू योर स्टोरी, योर स्टोरी इज गेटिंग अ वॉइस। सो आइए मैम से जानते हैं कि सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर बन के, और जब उन्हें किताब मिली थी तो क्या फीलिंग रही थी मैम आपकी? मैम डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, क्योंकि कभी सोचा नहीं था मैंने फ्रैंकली। लिखती थी पहले, शौक था, कॉलेज के टाइम पे लिखती थी, वो बुक तो अभी निकल भी गए हैं, डिस्कार्ड हो गए। तो जब ये मौका मिला लिखने का एंड व्हेन आई सॉ माय नेम एंड आई गॉट अ पब्लिशिंग सर्टिफिकेट, पहले तो आंखें भर आई कि यस आई कुड अचीव समथिंग। क्योंकि एक फीमेल की लाइफ में मैम जो थोड़े से ऐसी फैमिली से है जहाँ पे ज्यादा स्कोप नहीं दिया जाता है, वी आर लिमिटेड टू बीइंग अ हाउसवाइफ। मेरी थोड़ी स्टोरी अलग है बिकॉज आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी एक्टिव इन माय प्रोफेशनल फील्ड एज वेल। बट जब एक लेडी को एक रिकग्निशन मिलती है कि यस आज मेरा नाम कहीं पे है, माई बुक इज बीइंग सोल्ड ऑन Amazon एंड आई एम गेटिंग अ पब्लिशिंग सर्टिफिकेट, जो एक अलग फीलिंग होती है, जो एक एस्केलेटेड एक्सटेसी होती है, एक जो आंखें भर आती है ना जॉय से, एक खुशी से, वो वर्ड्स में बयान करना बहुत डिफिकल्ट है मैम, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो आई वॉन्ट माई अदर फ्रेंड्स जो को ऑथर बनने के प्रोसेस में है फॉर माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स, ये सेम फीलिंग एक्सपीरियंस करें। बट इट वॉज रियली वंडरफुल टू सी योर नेम एंड द सपोर्ट व्हाट आई गॉट फ्रॉम everybody when I was writing this book, सर से, आपसे, बाकी को ऑथर्स के पास से, वी हैड रेगुलर मीटिंग्स, वी वर डिस्कसिंग, पॉइंटर्स आ रहे थे, कैसे लिखना है, कैसे फॉर्म करना है, कहाँ पे गलतियां नहीं करना है, कहाँ पे कैसे ट्वीक करना है वर्ड्स को, ऑल दैट गाइडेंस वाज गिवन टू अस। So I'm very happy and very very satisfied. Words भी Congratulations, बयान नहीं ma'am. कर पा We रही हूँ are मैं। also happy. We are also glad to have you with us. And what's you say on spirituality, ma'am? स्पिरिचुअलिटी को मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि मैं शिव भगवान को ही ज्यादा मैं मानती हूँ यहाँ पे, और मैं जानती हूँ कि वो एनर्जी फॉर्म में हर जगह पे मौजूद होते हैं। स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन आर इंटरकनेक्टेड। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं मंदिर नहीं जाती, मैं नास्तिक हूँ, हाँ ठीक है, बट आई नो कि स्पिरिचुअल होने का मतलब अलग होता है, बिकॉज वी नो वी बिलीव गॉड इज एनर्जेटिकली अराउंड अस। स्पिरिचुअलिटी की जर्नी मैम ये हम अपने को गाइड करते हैं, एक इंसाइट देते हैं कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर सोल। बॉडी का पर्पस तो कंप्लीट होते रहता है दिन ब दिन, एज वी ग्रो ओल्डर पता रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, बट जो हमारी स्पिरिट का, जिस वजह से ये आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है, जिस वजह से हम लोग इस धरती पे आए हैं, वो पर्पस को अगर ढूंढना है, अपने आप के लिए कुछ करके जाना है, तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाना बहुत जरूरी है मैम। एंड फॉर दैट ऑकल्ट इज द बेस्ट रूट इज व्हाट आई बिलीव। जब आफ्टर आई ज्वाइंड अकल्ट एंड आई केम टू नो कि भाई मेरे नंबर्स क्या कहते हैं, मेरे नाम का क्या वजूद है, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिचुअल पाथ ऑफ माई लाइफ एंड आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर into the
स्पिरिचुअल वर्ल्ड रादर देन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब मैं वो दुनिया से दूर जा रही हूँ, मटेरियल वर्ल्ड से, मैं भगवान की तरफ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने की, दिस इज द पर्पस ऑफ माय सोल एंड आई वांट टू बी दिस। एंड जो खुशी इसमें मिलती है ना, दैट इज अनएक्सप्लेनेबल, हम लोग बयान नहीं कर सकते बीइंग स्पिरिचुअल। दैट इज व्हाट आई बिलीव। स्पिरिचुअलिटी से ही सब कुछ होता है, बिकॉज हम तो कुछ कर नहीं सकते, जो भी हो रहा है इट्स ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, इट्स ऑल बेस्ड ऑन द कर्मास. सो some beautiful lines I would like to say on spirituality. Meditating Supreme Lord in night, each and every worry in life is easily coped up. The another day is super bright, so never lose hope. वेरी नाइस मैम, ब्यूटीफुल। One more, because अभी आपने इतना ब्यूटीफुल बना दिया है स्पिरिचुअलिटी के बारे में कह के. The glorious God has a magical stick. It's all His grace. It's His creation. We all are just puppets in front of Him. सही बात, सही बात है। So yes, like moving on, I would like to inform you that my marriage की registrations अभी भी open हैं, तो आप जल्द से जल्द register करिए, certified published co-author बनिए. आपको बताना चाहूंगी कि अंकाक्षर मिरेकल्स MSME registered organization है, recognized by IAF AAA recognitions. So what are you waiting for? Do come and join us and be the certified published co-author with us. Thank you so much, ma'am. You came and gave us your precious time. तो ये थी रेनू मंगतानी की बात मीनल शाह जी के साथ. तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए अंकाक्षर मिरेकल्स के साथ. जल्दी हम मिलेंगे अगली को ऑथर के साथ. थैंक यू सो मच, मैम. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।